Hello everyone. In this video students, I am going to start chapter number 3 trigonometry. So let's start students. Trigonometry word is the combination of two words. First, trigon and second, metron. Trigon means students triangle and metron means measurement. It means students in this branch we will study measurement of triangle. So students, we will learn how to represent angle and sides of the triangle. We draw a triangle A, B, C. Vertex A is said to be angle A and vertex B is said to be angle B. Vertex C is said to be angle C. The opposite side of angle A is represented by side A and opposite side of angle B is represented by side B and opposite side of angle C is represented by side C. तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम गिवन ट्रायंगल के एंगल और साइड को रिप्रेजेंट करेंगे. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एंगल ऑफ द ट्रायंगल. एंगल, what is angle students? O, A, B. This is a angle. It means students, angle is made up of two rays of a common end point. Okay, common end point is said to be vertex. Okay, there are two types of angle. There are two types of angle: positive angle and a negative angle. Okay, if rotation is anti-clockwise, then angle is said to be positive angle. O, A, B. Initial line and OB is said to be terminal line. If rotation is anti-clockwise, okay, the angle is said to be positive angle. Positive angle. And if rotation is clockwise, then angle is said to be negative angle. Initial line, terminal line. Negative. स्टूडेंट्स टोटल टू टाइप्स ऑफ एंगल होते हैं, पॉजिटिव एंगल एंड
निगेटिव एंगल। अगर टर्मिनल लाइन का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है तो पॉजिटिव एंगल कंस्ट्रक्ट होता है, और एंटी क्लॉकवाइज होता है तो वो निगेटिव एंगल होता है। यानी एंटी क्लॉकवाइज के केस में पॉजिटिव एंगल और क्लॉकवाइज के केस में निगेटिव एंगल। ओके, नाउ वी विल डिस्कस मेजरिंग ऑफ एंगल। ओके, द मेजर of an angle is the amount of rotation of terminal side from its initial साइड। ओके, जैसे ये आपका इनिशियल साइड है, और ये टर्मिनल साइड है। तो अब जो अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है इस टर्मिनल साइड का फ्रॉम इनिशियल साइड से, इसी को हम क्या कहते हैं, मेजर ऑफ एंगल कहते हैं। ओके, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ यूनिट्स ऑफ एंगल। Number 1, degree. In this system, angle is measured in degree. Okay, 360 degree equal to one complete rotation of terminal line from the initial line। यानी 360 डिग्री जो होता है वन कंप्लीट रोटेशन के इक्वल होता है। तो देयरफॉर 1 डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन 360 कंप्लीट रोटेशन। ओके, एंड 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होता है। 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। अब अगर हम डिग्री को भी डिवाइड करें तो कुछ और यूनिट्स इसके डिग्री फॉर्म में आते हैं। जैसे 1 डिग्री इक्वल टू होता है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। ओके, 60 मिनट मीन्स वो घड़ी वाली सुई से है। जैसे 1 मिनट में मिनट वाली सुई जितना मूव करेगी, रोटेट होगी, वो कितने के इक्वल होगा, 1 डिग्री के इक्वल होगा। एंड 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड एंड 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन रिटेन एज 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। ओके, एंड सेकेंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ओके, सेकेंड रेडियन। In this system, students, angle is measured in radian. What is radian, students? We draw a circle
O is the center of circle and R is the radius of circle. Consider a arc AB of length R. हम एक आर्क कंसीडर कर रहे हैं AB जिसकी लेंथ इस सर्किल के रेडियस के इक्वल. इन दिस सिचुएशन स्टूडेंट्स, यहां जो एंगल सबस्टेंट होगा एट द सेंटर, इसको हम कहते हैं 1 रेडियन. ओके, इट मींस स्टूडेंट्स, रेडियन is a angle subtended at the center of the circle by an arc whose length is equal to radius of the circle. It is a definition of radian. यानी अगर किसी सर्किल का आर्क जो लेंथ में सर्किल के रेडियस के इक्वल है, सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करता है उसे हम 1 रेडियन करते हैं. ओके, नाउ वी नो दैट फुल सर्क्यूम्फरेंस of the circle subtend angle 360 degree at the center. Okay, therefore 360 degree upon angle AOB, angle AOB equal to circumference of the circle upon arc AB, arc length AB. From geometry, students, we know that the angles at the center of a circle are the ratios of their correspondence length of the arc. मतलब सर्किल के सेंटर पर जो भी एंगल बनते हैं आर्क के द्वारा, उन एंगल का जो रेशियो होता है आर्क के लेंथ के रेशियो के इक्वल होता है. तो आप देखो सेंटर पे 360 डिग्री जो एंगल बन रहा है वो सर्किल के फुल सर्क्यूम्फरेंस से बन रहा है. तो हमने ये सर्क्यूम्फरेंस ऑफ द सर्किल लिख लिया. और जो एंगल AOB बन रहा है वो आपका आर्क लेंथ R से बन रहा है, यानी इस लेंथ से. तो वही हम दोनों एंगल का जो रेशियो लिए हैं वह क्या लिए हैं, रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्क. यानी ये एंगल फुल सर्क्यूम्फरेंस लेंथ के लिए है तो हमने फुल सर्क्यूम्फरेंस लिया है, और ये एंगल सिर्फ इसके लिए है. ओके, तो अब आपका हो जाएगा ये 360 डिग्री अपॉन 1 रेडियन, ये 1 रेडियन है, इक्वल टू सर्क्यूम्फरेंस 2 पाई r अपॉन आर्क लेंथ AB r. कैंसिल. 360 डिग्री इक्वल टू बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 पाई रेडियन, और 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन. इट इज ए रिलेशन बिटवीन डिग्री and
रेडियन। ये जो है डिग्री और रेडियन का क्या है, रिलेशन है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स सपोज ए आर्क of length s, okay, sustain theta angle at the center, so therefore theta upon 1 radian equal to theta upon 1 radian. 1 radian means angle AOB इक्वल टू आर्क लेंथ। अब ये थीटा एंगल किस आर्क से बन रहा है, AC, द लेंथ ऑफ ACS, एंड ये जो 1 रेडियन है किस लेंथ से बन रहा है, R से, R। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन थीटा इक्वल टू S अपॉन R, R S इक्वल टू थीटा इंटू R। दिस इज ए फार्मूला फॉर लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, अब ये जो है फार्मूला हमारा आर्क लेंथ निकालने का हो गया अगर उस आर्क के द्वारा सेंटर पर सबटेंड एंगल पता हो। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम इस फार्मूले को यूज करेंगे तो इस थीटा को हमेशा रेडियन फॉर्म में यूज करेंगे। ओके, रेडियन फॉर्म में रहेगा, तभी ये फार्मूला को हम यूज करेंगे। ये फार्मूला बहुत पहले से जानते हो, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ओके, वही फार्मूला, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये आर्क लेंथ हो गया। नाउ वी विल स्टडी एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्किल। वी ड्रॉ ए सर्किल, O is the center, OAB is a sector of the circle, theta be the angle, and S be the length of arc AB, and R be the radius of the circle. स्टूडेंट्स, हमें इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, ये जो है, ठीक है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर OAB अपॉन एरिया ऑफ द सर्किल इक्वल टू, फ्रॉम ज्योमेट्री स्टूडेंट्स क्या होगा, ये सेक्टर जिस एंगल को सब्सटेंड करता है वो एंगल अपॉन एरिया ऑफ द सर्किल, यानी टोटल सर्किल की एरिया जितना एंगल सेंटर पे सब्सटेंड करता है वो एंगल, तो टोटल सर्किल कितना एंगल सब्सटेंड करेगा, 2 पाई। ओके, क्योंकि ये टोटल 1 राउंड का एंगल 1 रोटेशन में कितना एंगल बनता है, 2 पाई। तो एरिया ऑफ द सेक्टर OAB अपॉन एरिया ऑफ द सर्किल, यानी कोई भी अगर सर्किल है तो उसके 2 सेक्टर्स के एरिया का जो रेशियो होता है वो सेक्टर सेंटर पे जितना एंगल बनाता है उसके रेशियो के इक्वल होता है। तो वो एक सेक्टर हम सपोज कर रहे हैं AOB, और एक सेक्टर हम पूरी सर्किल को ले रहे हैं। तो जो फर्स्ट वाला सेक्टर है वो सेंटर पर थीटा एंगल बना रहा है, और जो सेकेंड सेक्टर पूरे सर्किल को सपोज किए हैं वो सेंटर पर कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है, 2 पाई। तो एरिया इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ द सेक्टर OAB इक्वल टू थीटा अपॉन 2 पाई बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वी नो दैट एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, पाई पाई कैंसल, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 थीटा आर स्क्वायर। दिस इज ए फार्मूला फॉर द एरिया ऑफ द सेक्टर। ओके, we know that students theta equal to S upon R, therefore S equal to theta into R.
This formula apply here. We get area of the sector of circle equal to 1/2 थीटा इंटू आर यस इंटू आर. ओके, क्योंकि यहां से देखो थीटा आर स्क्वायर था तो थीटा इंटू आर इंटू आर, तो इस थीटा आर के जगह पे हमने यस लिख लिया और ये आर. तो ये भी फार्मूला आप यूज कर सकते हो. किसी भी सेक्टर की एरिया फाइंड करने के लिए उस सेक्टर का लेंथ पता होना चाहिए जो आर्क लेंथ है और सर्किल का रेडियस पता होना चाहिए. और इस फार्मूला को अप्लाई करने के लिए सेक्टर द्वारा सबटेंड एंगल पता होना चाहिए और रेडियस पता होना चाहिए. ओके, नाउ वी विल सॉल्व सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन मेजर ऑफ एंगल एंड एरिया ऑफ द सेक्टर. सो वी टेक एग्जांपल नंबर 1. Convert following into radian measure. First question 25 degree and second 5 degree 37 minute 30 second. First part हमें 25 डिग्री को रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है. वी नो दैट 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन. ओके, तो देयरफॉर 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियंस. ओके, देयरफॉर 25 डिग्री इक्वल टू 25 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियंस. ओके, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, दैट इज इक्वल टू 5 पाई अपॉन 36 रेडियन. ओके, तो ये हम 25 डिग्री को किसमें कन्वर्ट कर लिए? रेडियन फॉर्म में. आंसर क्या हो गया? 5 पाई अपॉन 36 रेडियन. सेकेंड पार्ट 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड. तो पहले स्टूडेंट्स सबको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे. तो 5 डिग्री प्लस 37 प्लस 30 अपॉन 60 मिनट, ये टोटल मिनट में हो गया. वी नो दैट 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड. 1 मिनट 60 सेकेंड के इक्वल होता है, तो 1 सेकेंड इक्वल टू 1 अपॉन 60. इसलिए इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिए. दैट इज इक्वल टू 5 डिग्री प्लस 37 प्लस 1/2 मिनट इक्वल टू 5 डिग्री प्लस 75/2 मिनट. ठीक है, दैट इज इक्वल टू 5 डिग्री प्लस 75/2 इंटू 1 अपॉन 60. ये भी डिग्री में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, वी नो दैट 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट. 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट. ठीक है, वो फार्मूला अप्लाई कीजिए. 5 15 5 जा 75 और 15 4 जा 60. दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 5 अपॉन 8 डिग्री इक्वल टू 45 अपॉन 8 डिग्री. 8 5 जा 45. ओके, इक्वल टू 45 अपॉन 8 इंटू पाई अपॉन 180. इसको अब डिग्री रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि आपका 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन होता है. जब भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई. 9 5 जा 45, 9 2 जा ओके 5 4 जा इक्वल टू पाई अपॉन 8 4 जा 32 रेडियंस. नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स, convert the following radian measures into degree measures
use pi equal to 22/7. Solution of first part, 3/4 can be written as 3/4 into, we know that students 180 degree equal to pi radian. Therefore 1 radian equal to 180 upon pi degree. Okay, 180 upon pi degree. So here 180 upon pi, that is equal to 3 into 45 upon pi, or 3 into 45, pi equal to 22/7, 3 into 45 into 7 upon 22. That is equal to 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 13 into 7 upon 22, are equal to 7 5 जा 35, 7 3 जा 21, 24 4 carry 2, 7 1 जा 2, 9 upon 22 degree. अब 945 divided by 22, 4 times 88, 14 minus 8 6 5. Okay, 2 जा 44, 1 and 2, so that is equal to 42 degree. 21 upon 22 degree, 42 plus 21 upon 22 डिग्री. अब इसको आप मिनट में कन्वर्ट कर दो, दैट इज इक्वल टू 42 डिग्री प्लस, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 21 इंटू 60 अपॉन 22, ये मिनट में हो गया. दैट इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 42 डिग्री प्लस 11 times 30, that is equal to 0 3 1 जा 3 3 2 जा 6 divisible by 11, 11 5 जा 55, 13 minus 5 8, 11 7 जा 77 3, तो that is equal to 57 मिनट प्लस 3 upon 11 मिनट. इसे आप सेकेंड में कन्वर्ट कर दो, दैट इज इक्वल टू 42 डिग्री प्लस 57 मिनट प्लस 3 इंटू 60 अपॉन 11 सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 0 18, 180 डिविजिबल बाई 11, 1 टाइम्स 11 7 0 16, 42 डिग्री 57 minute plus 16 second. It can be written as students 42 degree 57 minute and 16 second. It is a answer of first part. Second part students, 5 pi upon 3 इक्वल टू 5 पाई अपॉन 3. अब ये रेडियन मेजर है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम कितने से इंटू करेंगे? ठीक है, देखो, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन मेजर इन डिग्री फॉर्म. तो ये रेडियन मेजर में है. डिग्री फॉर्म में वी नो दैट 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 रेडियन इक्वल टू 1/80 अपॉन पाई. जब भी हमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होता है तो 1/80 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना तो पाई अपॉन 180 से. पाई एंड पाई कैंसिल, 60 टाइम्स में कैंसिल, 300
300 डिग्री. इट इज ए आंसर. ओके. एग्जाम्पल नंबर 3 स्टूडेंट्स. A wheel makes 360 revolution in 1 minute. Since 1 minute equal to 360 revolution. Okay. Through how many radians does it turn in 1 second? यानी कितना रेडियन वो मूव कर जाएगा 1 सेकेंड में. तो पहले आप टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड निकालो. देयरफॉर 1 सेकेंड द टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन 360 upon 60. ओके. बिकॉज 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड रिवोल्यूशन. 0 and 0 कैंसिल. 6 रिवोल्यूशन. ओके. रेडियन मेजर्ड. 1 रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियंस एंगल क्या होता है? रोटेट होता है. तो 60 इंटू 1 रिवोल्यूशन में 2 पाई, ठीक है, इक्वल टू 12 पाई रेडियन. तो यानी 1 सेकेंड में जो व्हील होगा टोटल 12 पाई रेडियंस मूव करेगा. ओके. इसमें देखो हमने क्या किया था. एक गिवन है कि 360 रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट. 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन हो गया. 1 सेकेंड में 60 डिवाइड कर दिए, टोटल 6 रिवोल्यूशन हो गया. और 1 रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन एंगल मूव होता है. तो हमने 2 पाई से इंटू कर दिया, 12 पाई रेडियन हो गया. ओके. एग्जाम्पल नंबर 4. फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्किल ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर which subtends an angle 45 degree at the center. Given diameter of the circle 20 centimeter, so therefore radius of the circle 10 centimeter and angle 45 degree at the center. The theta equal to 45 degree. Okay. हमें लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करना है. यस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. वी नो दैट स्टूडेंट्स थीटा इक्वल टू यस अपॉन आर. देयरफॉर यस इक्वल टू थीटा इंटू आर. थीटा इक्वल टू 45 डिग्री एंड आर इक्वल टू 10. अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि यहाँ जो थीटा की वैल्यू है, जब भी इस फार्मूले को हम अप्लाई करते हैं तो रेडियन फॉर्म में वैल्यू पुट करते हैं. तो डिग्री है तो इसको हम रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो 45, ठीक है, रेडियन फॉर्म में, यानी 180 डिग्री इक्वल टू पाई है. ठीक. तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपान क्या हो जाएगा? 180. यहां हम रख लेते हैं, इंटू कर देते हैं, पाई अपान 180 इंटू 10. 45 4 जा 180. ठीक है. तो ये आपका आ जाएगा 10 पाई अपान 4 या 5 पाई अपान 2 2 सेंटीमीटर.